Before we just go ahead, let me have a quick recap, come revision of unit number 3. In the last week, we completed the last point in our unit number 3. So today we are going to do the revisions. Before that, any one of you have any difficulties in any of the point in unit number 3, then we will first discuss it and then after we will do the revisions. Any one of you have any issue in any of the point from unit number 3? Okay, chali, not an issue. So what we will do, we will go through the unit number 3 and discuss the various points which we cover up till now. So let we have a quick revision of unit number 3. Friends, in unit number 3, as we already discussed, we have a 3 main points, namely the motivation, performance, appraisal, and training and development. These are the 3 points which we are discussed in unit number 3. In that we start up with the first one, that is motivations. In that we start up with the basic definitions of motivations, where we just see that ultimately motivations क्या है. So motivations, the motive refers an inner states, inner drive within an individual which will motivate him or her to behave, to put the activities, performance, efforts in a certain directions, and that directions will be towards the goal achievement. So that refers the process of motivations. Being a one individual, what will happen? The being a one individual, you are going to first recognize if some of the need is unfulfilled and you want to fulfill it. So as and when the need is recognized, unfulfilled need is recognized, that is going to create the inner drive within an individual, where the particular person start thinking, and based on the thinking he will start putting the efforts कि भाई मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे को वो चीज चाहिए, तो वो चीज पाने के लिए मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, so that I can able to get that particular things. तो क्या होगा, जो ड्राइव होगा, द ड्राइव विल बी विद द स्पेसिफिक डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा वो बंदे को कि यस मैं ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करूंगा सो दैट मेरे को ये चीज मिलेगी. So now there is a deficiency with the directions, and that particular person is going to put the efforts so that at the end he or she able to attain the goals कि भाई उसको जो चीज चाहिए थी वो चीज उसको मिल जाती है. तो जो यहाँ पे माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ था, जो डिसोनेंस क्रिएट हुआ था, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है. But as we all know that being one individuals, our human needs are unlimited. As and when one need is fulfilled, another are definitely going to arise. So in that way कि अगर कोई भी एक ह्यूमन बंदा है तो उसकी लाइफ में डेफिनेटली वन बाय वन different needs are going to be generated, and that particular persons are definitely going to put the efforts in his life towards attaining that needs. So in this way we can say that it is a continuous process which is going on in a life of an one human being. Then we discuss the definitions which is given by the Dubin and Vance. So in exam, you can write up any one of the definitions and you can elaborate in your own words. The same things in a different words. Motivation is the complex of forces starting and keeping a person at the work in an organization. कि वो क्या है, बंदे को continuously motivate करता रहता है, force है कि जिसके माध्यम से वो बंदा वर्क प्लेस पे continuously अपने आप को engage करता है. Then we also see about the types of motives कि भाई जो ह्यूमन मोटिव्स है, नीड्स है, तो वो कैसे प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है. आई मीन टू से उसकी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी नीड्स हो सकती है. कि भाई फिजिकल रिलेटेड क्या हो सकता है कि भाई हंगर, स्लीप, अवॉइडेंस ऑफ पेन, थ्रस्ट, ये सारा क्या है, प्राइमरी है, फिजियोलॉजिकल है. सेम वे साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होगी, उसका मोटिव्स क्या होगा, लाइक अचीवमेंट, एफिलिएशंस, पावर, सिक्योरिटी, स्टेटस, वो भी हो सकता है. एंड इवन वी कैन हैव अ जनरल मोटिव्स कि वहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई क्यूरियोसिटी है, मैनिपुलेशंस एंड एक्टिविटीज है, अफेक्शंस है, सोशल नीड है, तो वो सारी चीजें भी क्या है उसके मोटिव्स में हो सकती है. सो इन दैट वे वी कैन क्लासिफाई द नीड्स, मोटिव्स इन अ 3 मेजर पार्ट. उसके बाद हमने देखा था अबाउट द टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस और टूल्स व्हिच वी हैव कि बीइंग अ मैनेजर्स आप वो बंदे को कैसे मोटिवेट करोगे.
उससे कैसे काम ज्यादा लोगे, उसको क्या दिखाओगे। तो हियर वी जस्ट से दैट वी हैव टू वेज टू मोटिवेट एनीवन। वन इज अ पॉजिटिव वे, वन इज अ नेगेटिव वे। कि भाई पॉजिटिव वेज में क्या दिखा सकते हैं हम, तो वेरियस रिवॉर्ड्स व्हिच ही और सी कैन एबल टू गेट इफ ही और सी पुटेड द एफर्ट्स। एंड इन नेगेटिव वे वी आर गोइंग टू शो द फियर ऑफ वर्क लूजिंग, कि भाई अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा काम चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, रिवॉर्ड चला जाएगा, ये जो अच्छी जॉब है वो चली जाएगी। सो इन दैट वे वी आर शोइंग द फियर्स एंड थ्रू fears we are taking the work from him. So these are the two ways, tools which we can use out for the purpose of motivating someone. उसके बाद हमने देखा था steps which is need to be followed for the purpose of motivating someone. तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले to understand the different needs, कि भाई कौन कौन सी needs वो बंदे की है। We are going to prepare the motivational tools based on the relevant needs, कि भाई उसकी कौन कौन सी needs है, कौन कौन सी needs unfulfilled है, वो needs के लिए हम उसको कौन सा tools दिखाएंगे, positive, negative, and out of all the few tools should be selected and applied. फिर उसमें से कोई एक tool select करेंगे और वो apply करेंगे उसके ऊपर, and then after we are going to check the effectiveness of that particular tool, कि भाई वो tool हमने apply किया था उससे वो बंदा motivate हुआ या नहीं हुआ, उसका परफॉर्मेंस एनहेंस हुआ या नहीं हुआ, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो दिस आर द नॉर्मल स्टेप्स व्हिच वी आर फॉलोइंग इन मोटिवेशन प्रोसेस। देन इंपॉर्टेंट वन, द थियरीज ऑफ मोटिवेशन, कि भाई कौन कौन सी वेल एस्टेब्लिश थियरीज है जिसके माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा था वी हैव द थियरीज एज पर द सिलेबस। द फर्स्ट वन इज मास्लोज नीड हायरार्की थियरी, कि जहां पे हमने देखा कि क्या हुआ, अब्राहम मास्लो ने क्या बोला कि भाई ह्यूमन नीड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 5 मेजर कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। और क्या हो रहा है, बीइंग an individual, as and when one need is fulfilled, he or she will be moved towards the next level need. वो फुलफिल हो जाते हैं, उसके बाद ही वो बंदा थर्ड में जाता है, उसके बाद फोर्थ में, उसके बाद फिफ्थ में, लाइक दैट। तो जो सीक्वेंस है, हायरार्की है, वो फिक्स है, और जब एक लेवल की नीड फुलफिल होती है तभी बंदा नेक्स्ट लेवल पे जाता है। एंड बीइंग अ मैनेजर्स व्हाट ही सपोज्ड टू डू, ही नीड टू रिकॉग्नाइज at which stage the particular person is, and based on that the concerned tool need to be selected so that we can motivate him or her. The second theory which we have, that is Husband's two factors theory, कि जहां पे हमने डिस्कस किया था कि भाई उन्होंने क्या किया, हसबर्ग ने क्या किया, he carry out the research. He discussed with the 200 engineers, 200 employees of the different companies, and he simply asked them, okay, identify the situations, factors which will make them happy, the factors which make them unhappy. Based on that, he says that there are the two types of factors which is going to play the important role behind the motivations and demotivations of any individuals. And these two factors, he says, are the hygienic factors and motivator factors. फिर क्या बोला उन्होंने, hygienic factors क्या होते हैं, तो कभी hygienic factors are all those factors which are existed in surrounding environment. They are the factors which are not directly related with the job, कि भाई कंसर्न जॉब से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं बट इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है। और ये जो हाइजीनिक फैक्टर्स है, अगर वो सही सिचुएशंस में प्रेजेंट नहीं होंगे, then the particular persons will be demotivated, dissatisfied, और अगर प्रेजेंस है तो वो उसको मोटिवेट नहीं करेगा बट मेंटेन करेगा। तो मैनेजर्स के रूप में हमें क्या करना है, हाइजीनिक फैक्टर्स को मेंटेन रखना है, सो दैट कि भाई बंदा demotivate, dissatisfied ना हो। As compared to that, the motivator factors are all those factors which are directly related with the job. और हमें क्या करना है, वो मोटिवेटर फैक्टर्स को हम यूज करेंगे as and when we want to motivate someone. तो जब मोटिवेटर फैक्टर्स यूज करेंगे तो बंदा मोटिवेट होगा, जब यूज नहीं करेंगे तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहता है। So in this way, these are the two factors which we need to take care for the purpose of motivating someone. उसके बाद थर्ड थियरी थी, that is Bloom's expectancy theory, कि जहां पे क्या बोला उसने कि there are the three components, three factors which we need to understand for the purpose of understanding or for the purpose of motivating someone. तो कौन कौन से तीन फैक्टर्स थे, तो that are valence, instrumentality and expectancy.
बैलेंस क्या दिखाता है? इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल, कि वो जो बंदा है वो इंटरनली कितना स्ट्रांग है, कि भाई वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, कि भाई वो क्या दिखाता है? इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर इंटरनली स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली वो बंदा ज्यादा एफर्ट्स लगाने वाला है, बट इंटरनली वीकर होगा तो डेफिनेटली वो एफर्ट्स नहीं लगाएगा। सो इंटरनली वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है। Instrumentality represents the tools, ways which he or she is going to follow for the purpose of attaining the specific goal. And expectancy refers कि भाई वो बंदा क्या एक्सपेक्ट करता है, between the relationship between the efforts which he or she is going to put and the outcome which is going to be generated based on that efforts. तो उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है कि अगर मैं पूरी एफर्ट्स लगाऊंगा तो आउटपुट क्या होगा, तो वो एक्सपेक्टेंसी उसकी दिखाती है। तो वंस अगेन कि अगर वो एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है और परसेंटेज फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर उसकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है मतलब वो बंदा बिलीव करता है कि यस, कि अगर मैं अच्छी एफर्ट्स लगाऊंगा तो मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसकी एक्सपेक्टेंसी कैसी है, वो चीज क्या है, पूरा आउटपुट डिटरमाइन करने वाला है। और वो ऑब्जर्व करेगा कि भाई मैंने जितनी एफर्ट्स लगाया है उस हिसाब से आउटपुट आया कि नहीं आया। और अगर वो बंदा फील करता है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा आउटपुट एफर्ट्स लगाई थी बट फिर भी आउटपुट नहीं आया, एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, वो बंदा डीमोटिवेट हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा कि मैंने बहुत सारी एफर्ट्स लगाई थी बट फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। सो इन दैट वे उसकी एक्सपेक्टेंसी जो थी वो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव में से। और उसके कारण क्या होगा, जो बाकी के नेक्स्ट आउटपुट है उस टाइम पे भी उसकी इम्पैक्ट पड़ेगी कि भाई वो बंदा जो पहले एफर्ट्स लगाता था वो एफर्ट्स कम कर देगा। और उसके कारण क्या होगा, फर्स्ट आउटपुट की इम्पैक्ट सेकंड आउटपुट के ऊपर डेफिनेटली अराइज होने वाली है। तो वो बंदा क्या एक्सपेक्ट करता है और क्या आउटपुट आता है, वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है एज अ मैनेजर्स, सो दैट वी कैन make a continuous linkage between the what the people expect and what the outcome is coming, so that we can continuously motivate people to put more and more efforts. उसके बाद हेल्डरफर्ड्स ERG थियरी, कि जहां पे हमने समझा कि भी क्या है, ये एक एक्सटेंशन है किसका, तो कि भाई मास्लोस नीड हायरार्की थियरी का। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो नीड्स है उनको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेड नीड और ग्रोथ नीड। और क्या बोला उसके अंदर कि ये जो नीड्स उन्होंने 3 बताई है वो कोई स्पेसिफिक हायरार्की में नहीं होगी। कोई एक इंडिविजुअल बंदा है वो अपने एग्जिस्टेंट नीड के ऊपर भी फोकस करता होगा, अपने ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करता होगा। सो मे बी पॉसिबल्स कि भाई वो बंदा एक साथ 2 नीड फुलफिल करने के लिए अपनी एफर्ट्स लगाता होगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों नीडों को एक्सप्लेन करना है। मास्लोस के कंपैरिजन में वो कौन सी नीड थी, क्या है क्या नहीं, वो एक्सप्लेन करना है। और सिंपली एक्सप्लेन करना है कि ये ERG और मास्लोस वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, वो चीज हमें ये पर्टिकुलर थियरीज के अंदर एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद मैकक्लेंड्स अचीवमेंट मोटिवेशनल थियरी, कि जहाँ पे हमने क्या समझा कि कोई भी एक इंडिविजुअल्स बंदा है तो उसके अंदर 3 प्रकार की नीड्स हो सकती है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अफिलिएशंस। बट वो जो नीड है वो बंदे के अंदर कितनी है, हाई एंड पे है या लो एंड पे है। तो वो बंदे की नीड कौन से टाइप की है, वो चीज वो बंदे का बिहेवियर डिटरमाइन करेगा, वो बंदे की पर्सनालिटी डिटरमाइन करेगा। सो एज अ वन इंडिविजुअल, एज अ वन मैनेजर, अगर आपको कोई बंदे को समझना है, उसकी एफर्ट्स को समझना है, बिहेवियर को समझना है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई वो बंदे की कौन सी नीड कौन से टाइप की है, कौन से लेवल की है, और उस हिसाब से वो बंदे को आप ट्रीटमेंट दोगे तो वो बंदा और भी मोटिवेटेड होगा, और भी सेटिस्फाइड होगा और ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई वो कौन सी नीड उसकी है और वो नीड हाई एंड पे है या लो एंड पे है, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देनी है। तो दिस ऑल आर द वेरियस थियरीज व्हिच वी डिस्कस अप इन आवर मोटिवेशन चैप्टर्स। उसके बाद द सेकंड पॉइंट इन आवर यूनिट नंबर 3, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो उसमें से सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रेनिंग, कि भाई ट्रेनिंग क्या है। तो ट्रेनिंग इज वन ऑफ द एक्ट टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉयज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। कि कोई एक नया बंदा वर्क प्लेस पे आता है
या कोई एग्जिस्टेड बंदा है, तो हम क्या करते हैं एज ए मैनेजर्स, वी ऑलवेज गोइंग टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ हिम और हर, कि भाई वो बंदा जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। कोई नया बंदा आया है तो वो डायरेक्टली ऑन द जॉब, डे वन से ऑन द जॉब नहीं रख सकते हम उसको हमें डेफिनेटली ट्रेन करना पड़ेगा रिगार्डिंग हाउ द पर्टिकुलर वर्क्स आर गोइंग ऑन इन आवर फैक्ट्री एट आवर वर्क प्लेस। तो for the making the particular persons aware regarding the various steps, we need to give him a training. And for the existing people, for the purpose of enhancing the performance, effectiveness, efficiency, we are giving the training to them. These are the various needs which represents we need to continuously give up the trainings to our employees so that they can update themselves with the upcoming technologies and various requirements, and they will work effectively at our place. Same way, these all are the objectives which we want to attain through the training programs at our organizations. These are the benefits which we are going to have at the organizational level, at the individual level, and even in terms of relationships between the employees. So all are going to be improved if we have a good training programs at the institutions. Then in managerial development part, कि भाई हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट where we are trying to improving the managerial skills, knowledge and abilities of a concerned managers at the workplace. तो ट्रेनिंग के अंदर हम फॉर एग्जांपल लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको सिखाते हैं कि भाई कंसर्न काम कैसे करना है, बट इन मैनेजरियल डेवलपमेंट वी आर फोकसिंग ऑन द मैनेजर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि जहाँ पे हम उसको समझाते हैं, उसको साथ डिस्कस करते हैं, उसको वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भेजते हैं, सो दैट कि भाई वो बंदे की जो मैनेजरियल स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज है वो इम्प्रूव हो, वो अच्छी हो, सो दैट कि भाई वो बंदा आगे जाके फ्यूचर में एक अच्छा मैनेजर बन सके। तो उसके बाद हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंसर्न रोल के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेनिंग देते हैं कि यस वो वेल्डर है तो उसको वेल्डिंग करना है, वो पेंटर है तो उसको पेंटिंग करना है, तो उसको क्या रोल दिया गया है उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग होती है। एज कंपेयर टू दैट डेवलपमेंट के अंदर हम वो पर्टिकुलर मैनेजर्स को ऑब्जर्व करते हैं और वो उसकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी का करंट सिचुएशंस को एग्जिस्ट में ऑब्जर्व करते हैं और उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रेनिंग जो है वो क्या है, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होती है, डेवलपमेंट के अंदर हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो बंदे को प्रिपेयर करते हैं। तो इन दैट वे देयर आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, and same way we also see the difference between the training and development as well as even organizational development, कि जहाँ पे हम overall organizations का development करना चाहते हैं। तो these are the basic points based on which we can differentiate them. So ये था point number 2, training and development. Then we move towards the third point in our unit number 3, that is performance appraisal, कि जहाँ पे हमने डिस्कस किया था सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट कि भी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। तो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन सिस्टम है कि जहाँ पे हम हमारे जो करंट एम्प्लॉयज है उनके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, सो दैट वी कैन टेक अ डिसीजंस कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उनको प्रमोशंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वेरियस डिसीजंस लेने के लिए हम क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैरिड आउट करते हैं। These are the various features of performance appraisals which we discuss, objectives and benefits which we have based on the performance appraisal that we will discuss, what we are going to evaluate and who is going to evaluate that we will discuss in performance appraisal. Then the performance appraisal process, कि भाई क्या होगा, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई ऑन एन एवरेज एक बंदा कितना काम करता है, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे एंड वी विल टेक अ करेक्टिव डिसीजंस कि भाई वो बंदा सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो डिसीजंस हम लेंगे। इंपॉर्टेंट वन, द मेथड्स, कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल कैरी आउट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स है।
तो जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेथड। उसमें से सबसे पहले टाइप्स की मेथड थी कि जहाँ पे हम एम्प्लॉयज को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करते हैं, लाइक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम, कि जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा, जो सीनियर होंगे वो अपने जूनियर्स के बारे में रिपोर्ट बनाएंगे और उसको सील पैक कवर में अपनी हायर अथॉरिटी को सबमिट करेंगे कि भाई उसका बिहेवियर कैसा था, परफॉर्मेंस कैसा था, कोई इश्यू, प्रॉब्लम, झगड़ा या एलिगेशंस उसके ऊपर हुआ कि भाई किसी ने बोला कि भाई इसने ब्राइब लिया, तो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड कि भाई ये सही है या गलत है। तो जो सीनियर होगा वो सारी चीजें देख के उस हिसाब से रिपोर्ट प्रिपेयर करके सील पैक करके अपने सीनियर अथॉरिटी को भेजते हैं। तो दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऐसे इवेल्यूएशन कि जहाँ पे क्या होता है कि जो इवेल्युएटर है वो सारी चीजों को इन डिटेल में लिखेगा, जस्ट लाइक अ ऐसे, सो दैट कि भाई बाद में जाके जब हम उसको रीड करेंगे तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई इवेल्युएटर्स ने बोला कि भाई वो बंदा, ऑब्जर्वर्स ने बोला कि भाई वो बंदा अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बट बिहेवियर क्यों अच्छा नहीं है, दैट इज ऑल्सो टू बी नोन, बिकॉज वहां पे उसने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि भाई क्या हुआ था, कौन सा इंसिडेंट्स था, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि भाई वो ऑब्जर्वर बोल रहा है कि वो एम्प्लॉयज का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो वो सारी चीजें हमें पैराग्राफ्स को रीड करके समझ में आता है। तो इसीलिए ये क्या है, यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें लिखी जाएगी, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ एसे इवैल्यूएशन मेथड। उसके बाद था क्रिटिकल इंसिडेंस टेक्निक्स कि भाई ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं तो बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, तो उसको लिखने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो वो लिमिटेशंस रिमूव करने के लिए हमारे पास मेथड है क्रिटिकल इंसिडेंस, कि जहाँ पे क्या होगा कि भाई मैनेजर लॉगबुक रखेगा, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड होगी, और अगर कोई क्रिटिकल इंसिडेंस, इंपॉर्टेंट इंसिडेंस होता है, उसका हमने लिस्ट बनाया होगा पहले से, तो ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तभी हम उसकी एंट्री कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे, अदरवाइज उसकी एंट्री नहीं होगी। तो पॉजिटिव अगर चीज हुई है तो पॉजिटिव साइड पे एंट्री होगी, नेगेटिव चीज है तो नेगेटिव साइड पे एंट्री होगी, और लास्ट में हम चेक करेंगे कि भी कौन सी साइड पे उसकी ज्यादा एंट्रीज है, उस हिसाब से वो बंदे का परफॉर्मेंस मेजर होगा। देन वेटेड चेकलिस्ट मेथड, और चेकलिस्ट मेथड कि क्या होगा, पहले से वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स होगी कि जो हम ऑब्जर्वर्स को देंगे, ऑब्जर्वर्स हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेगा, वो स्टेटमेंट के बेसिस पे चेक करेगा, यस नो में आंसर टिक मार्क करेगा। ग्राफिकल रेटिंग स्केल, वंस अगेन सेम, बट यहाँ पे क्या करना है, हर एक ट्रेड्स, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को उसको 1 to 5 के स्केल्स में मेजर करना है कि भाई वो पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर कैसा है, ऑनेस्टी, तो वो एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है या बहुत कम ऑनेस्ट है, तो उस हिसाब से 1 to 5 के स्केल में, 1 to 7 के स्केल्स में रिकॉर्ड करना है, और उस हिसाब से हम वो बंदे को समझेंगे। बिहेवियरली एंकर, कि जहाँ पे क्या किया हमने, दो स्केल्स को कंबाइन किया, दो मेथड को कंबाइन किया, ग्राफिकल रेटिंग स्केल और क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड, दोनों को कंबाइन किया। हमने क्या किया, ट्रेड्स की जगह पे क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड नोट डाउन कर दिया, और उस हिसाब से हमने ऑब्जर्व किया, और वो चीज में वो बंदा कैसा है कैसा नहीं, वो स्केल्स के अंदर हमने ऑब्जर्व किया। उसके बाद था फोर्स द चॉइस मेथड। वंस अगेन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स होगी, और हर एक स्टेटमेंट्स के बेसिस पे एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करना है और वहां पे टिक मार्क करना है कि भाई वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, सब लोग साथ में आएंगे, बैठेंगे, पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट का, उसके बाद हर एक बंदा इंडिविजुअल लेवल पे डिटरमाइन करेंगे, और फिर क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, और हम चेक करेंगे कि जिस हिसाब से डिसाइड हुआ था उस हिसाब से परफॉर्मेंस है या नहीं है, जो गोल डिटरमाइन किया था वो बंदे ने अटेन किया या नहीं किया। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सभी लोग अपने खुद के गोल्स डिटरमाइन करेंगे, उस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, और बाद में जाके हम चेक करेंगे कि जो गोल डिटरमाइन हुआ था उस हिसाब से वो बंदे ने परफॉर्म किया या नहीं किया। दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद था रैंकिंग मेथड। तो रैंकिंग 9, 10, 11, ये इसमें क्या कर रहे हैं, हम दो एम्प्लॉयज को कंबाइन कर रहे हैं, दो से ज्यादा एम्प्लॉयज को साथ में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो रैंकिंग में क्या होगा, वंस अगेन सेम थिंग कि भाई हम एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करेंगे और एक दूसरे के साथ कंपेयर करके उसको रैंक देते हैं। इवन वी कैन गो फॉर द पेयर कंपैरिजन, कि जहाँ पे क्या करेंगे, एक एम्प्लॉयज को दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, तो उस हिसाब से कंपेयर करेंगे। कोई एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे और बाकी के सभी लोगों के साथ उसको कंपेयर करेंगे,
एंड फ्रॉम दैट वी विल आइडेंटिफाई कि भाई ये कंपैरिजन में सबसे अच्छा कौन था, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू टेक अ डिसीजंस कि विच एम्प्लॉय इज द बेस्ट वन, और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कि जहाँ पे क्या होगा, पहले से सेगमेंट की परसेंटेज डिटरमाइन होंगे कि भाई 3 प्रकार के सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल कि भाई एक्सीलेंट एम्प्लॉय, एवरेज एम्प्लॉय, पुअर एम्प्लॉय। तो हमने कोटा डिसाइड कर दिया है कि भाई 10% मैक्सिमम एक्सीलेंट में हो सकता है, 70% मैक्सिमम एवरेज में हो सकता है, 20% मैक्सिमम पुअर में हो सकता है। फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्वर हर एक एम्प्लॉयज को चेक करेंगे, उनका परफॉर्मेंस कौन से सेगमेंट में, कौन से कोटा में प्लॉट होता है वो देखेंगे, और उस हिसाब से उसको कंसर्न जगह पे प्लॉट करेंगे। दैट इज फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसके बाद था अदर मेथड्स, उसके अंदर है फर्स्ट ग्रुप अप्रेजल, कि जहाँ पे क्या है, कोई अगर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्व करके उसको इवेल्युएट करता है तो वहाँ पे चांसेस ऑफ बायसनेस है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप अप्रेजल के लिए जा सकते हैं कि जहाँ पे 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वर होंगे और वो लोग ऑब्जर्व करके इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कि जहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक अदर एसेट्स उसकी हम मॉनेटरी वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं, उस हिसाब से हर एक इंडिविजुअल बंदे की हम मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं कि भाई उसके पीछे कितना खर्चा हुआ और वो बंदे से हमें कितना पैसा रिटर्न में मिला, एंड बेस्ड ऑन दैट वी वांट टू सी कि भाई वो एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय है या नहीं है हमारे लिए, उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। उसके बाद था असेसमेंट सेंटर, एक जगह होगी कि जहाँ पे हम वो बंदे को भेजेंगे और वो बंदे वहाँ पे उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज दी जाएगी। कैसी एक्टिविटीज, कि जो वो बंदे को फ्यूचर में करनी है, अगर उसको प्रमोट किया जाता है तो नए डेजिग्नेशन पे वो जो एक्टिविटीज कर रहा है वैसे एक्टिविटीज हम यहाँ पे उसको डेमो के रूप में देंगे, और एक्सपर्ट जो होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे कि भी वो एक्टिविटीज में वो बंदा कैसा है, उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि यस वो प्रमोशन के लिए तैयार है या नहीं है, उसको और ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। देन फील्ड रिव्यू मेथड, कि जहाँ पे क्या होगा, हमारे एचआर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएंगे, जो मैनेजर्स है उसके साथ मिल के लोगों को ऑब्जर्व करके उनको क्वेश्चनर सॉरी रिपोर्ट फिलअप करने में, बनाने में हेल्प करेंगे। द लास्ट मेथड दैट इज 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, कि भाई क्या होता है, एक दो बंदा है फिर भी चांसेस ऑफ बायसनेस आर देयर, तो इन ऑर्डर टू गेटिंग द होल व्यू, वो बंदे का पूरा व्यू समझने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स who are directly or indirectly related with that particular employees. तो वो सारे लोगों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे about that particular person, and from evaluation of that we are going to get the ideas कि whether he or she is a good person or not, उसका बिहेवियर अच्छा है या नहीं है। तो क्या हो सकता है, एक बंदा, दो बंदा या 3 लोगों के साथ उसका क्या है, प्रॉब्लम होगा, गलत इंफॉर्मेशन देंगे, बट सभी लोग गलत इंफॉर्मेशन देंगे ऐसा नहीं होगा। सो वट एवर द आउटपुट इज गोइंग टू बी देयर, इट विल बी द 100% जेन्युइन एंड करेक्ट, बट लिमिटेशंस क्या होगी, दिस मेथड इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टलियर वन फॉर us. So in this way, these all are the various methods which we have for the purpose of carry out the performance appraisal in the organizations. And then after, we also need to have the essential characteristics of effective appraisal system. कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हम ऑब्जर्व करेंगे, चेक करेंगे बिफोर सिलेक्टिंग द स्पेसिफिक मेथड, और अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे फुलफिल होते हैं, हमारे फेवर में है, तभी हम वो पर्टिकुलर मेथड को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल कैरी आउट करेंगे। तो दिस इज अबाउट द यूनिट नंबर 3 इन आवर सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।